आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. देखिए, बाइबल का हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। Every word of the Word of God is very, very important. हाँ, मगर जिस विषय के बारे में आज जिस आश्चर्य कर्म के बारे में बात करना मांग रहे हैं, But the surprise, the wondrous work that we want to talk about today, ये एक आश्चर्य कर्म पूरे अध्याय में यूहन्ना में पूरा अध्याय दिया गया है इस एक आश्चर्य कर्म। there's a whole chapter in John given to this miracle. हाँ, और अद्भुत बात है। The amazing thing is, आइए हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। come let us start with a word of prayer. मेहरबानी से हम सब प्रार्थना करेंगे मन में Come let us all say a word of prayer in our heart. कि प्रभु बोल, प्रभु तेरा दास सुनता है। Speak, Lord, for your servant hears. प्रभु जी, आप हमारे मनों को तैयार करें। Lord, prepare our heart. प्रभु, ये प्रचारक से लेकर जितने प्रचार सुनते हैं सबसे एक नई रीति से बात करें। Not only to this preacher, but to each one who hears the word this morning, Lord, speak to all of us. हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन न करने पाए। We may not exhibit our knowledge. प्रभु जी, इसलिए हमें अपने क्रूस के पीछे छिपा लें। So hide us behind your cross. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा कर। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हियाब दे, पुकारने का शब्द दे, Give boldness to speak and a voice to cry out, और सारी महिमा आपको मिले। and you may receive all the glory and honor. और ये वचन बहुतों के जीवन में अनंत काल का परिवर्तन, And this word may bring real change in the life of many people this morning. कहीं कोई घमंड मेरे मन में, मेरे भाई में कोई ऐसी बात आई हो तो ये सुना। Oh Lord, any pride or anything that has come in me and my brothers are washed away in your blood. किसी के प्रति विरोध की बात आई हो तो क्षमा कर। If there is any opposition against anyone, Lord, forgive. प्रभु, हम आती है, हम रुक नहीं सकते, अपने लहू से धो पवित्र। All this comes, Lord. We can't stop ourselves. Please wash away in your blood. हमें अपने क्रूस के पीछे छिपा। Hide us behind your cross. लोग तुझे देख सकें। People will be able to see you. प्रभु जी दया कर। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. हम पूरी कहानी तो नहीं पढ़ सकते, मगर we will not be able to read the whole story. और मैं आपसे बता दूंगा, शब्दों में बता दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 1 से 5 तक पहले पढ़ेंगे, फिर लास्ट में 41 और सारी कहानी का एक छोटा सा रिव्यू मैं आपके साथ शब्दों में। And we will read the story in John chapter 9 in parts. I'll read it from the first parts of it, and then we'll see the story like that. हाँ, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। 41 पद, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who has sent me while it is day. The night is coming when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. And then in verse 41, he says, Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say, we see, therefore your sin remains. उस वचन पर अपने वास्तविक आशीषों के लिए, O Lord, bring your divine blessing upon this word. In Jesus' name we pray. Amen. फरीसी जो यहूदी धर्म का वो था, उनका मत था, The Pharisees of the Jewish religion, they had
There was a group amongst them. नहीं, The Pharisees were a group amongst the Jews. हाँ, उनके धर्म का ये वो One था। of their religious groups. उनकी हर पीड़ा और परेशानी की जड़ जो होती है उसे वो पाप से जोड़कर देखते हैं। And every pain and problem that they had in their life, they would connect it with sin. हाँ, और उसको तोड़ जो है वो धर्म में है, उनके धर्म में है। And the solution to that is only in their religion. ये सोच एक बड़ी उलझन हम में पैदा कर देती है। This thinking produces another confusion in our mind. यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु जा रहा है, रुका, उसने एक पापी को देखा, एक अंधे को देखा। Here the Lord is going, he stopped, he saw a man who was born blind. चेलों ने सवाल खड़े किए, And disciples raised questions. कारण पूछा, And they asked the reason. इसके पाप, इसके परिवार के पाप क्यों? Why his sin, parents' sin, whose sin? प्रभु ने बताया, प्रभु यीशु की महिमा आगे उसको मट्टी ली प्रभु ने और उसमें थूका और उसकी आंख पे लगा दिया। The Lord said, no, this is for the glory of God. And then he took clay, he spat on it, made clay out of it, and put it on his eyes. और कहा शीलोह कुंड में जाके धो ले। And he said, go and wash in the pool of Siloam. अब ये बात फैली। Now this thing spread. और बहुतों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई। And for the religious leaders, this became a massive problem. हाँ, क्योंकि वो तो सबत का दिन था। Because that was the day of the Sabbath. हाँ, ये तो धर्म को तोड़ रहा है। He is breaking our religion. हाँ, उसने कहा कि जो मट्टी थूक में जो सानी है, ये सबत का नियम का टूट है, तोड़। And he says this clay he has made from his saliva, he has broken the rule of the Sabbath. ओहो, ये तो भयानक बात है। This is a terrible sin. आदमी मरता मर जाए, कोई बात नहीं, मगर धर्म ना जाए। Let a man die, let him die, but the religion must not be broken. धर्म जाए पर वो जान चली जाए पर वो धर्म ना जाए। Life may go, but not religion. आदमी मरता मर जाए, कोई परवाह। Let a man die, no problem. हाँ, बड़ी समस्या खड़ी हो गई, उसके परिवार को बुलाया। The real problem was created. They called the child, the boy's family, the man's family. हाँ, उससे कहा, भाई तू पापी आदमी है, ये तो धर्म को मानते ही नहीं है, And अधर्मी said, है। oh, this man, he's a sinner. He does not accept the religion. He is unrighteous. उन्होंने कहा, भाई देख, एक बात सुन लो तुम। And he said, listen one thing. देखो, वो है या नहीं है पापी मुझे नहीं मालूम, मुझे एक बात मालूम है, मैं अंधा था, अब देखता हूँ। I don't know whether the man is a sinner or not. This one thing I know, I was blind, now I see. उसने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए। And he also raised certain questions. यूं कि भाई जो अगर ये पापी आदमी तो ऐसा कैसे कर सकता है? He says, if he is a sinner, how can he do something like that? हाँ, उन्हें छुपा मतलब ये था कि तुम इतने धर्मी बनते हो तो तुम क्यों नहीं कर देते? Then the hidden meaning was, if you are being so religious, why don't you heal me? Why didn't you heal me? झुंझला गए किसी, ये कहा नहीं, लिखा नहीं है, मगर मैं अपने अंदाज से। It is not written, but they got so wild and irritated by all this. उसे भगा दिया। And they told him to, they threw him out. चला गया वो। He went away. फिर प्रभु मिला उसे मंदिर से एक दिन। Then the Lord met him उसे बताया कि मैं कौन हूँ। and told him who I am. तब उसने विश्वास किया। Then he believed. और तब उसने आराधना की। And then he worshipped. ये छोटी कहानी है। This is the small story in front of us today. आइए हम थोड़ा इससे में जाएंगे, बहुत सारा नहीं ले सकते। सवाल We'll only go to a small portion, not the whole story. हमारा जो मेन हिस्सा रहेगा 4-5 रहेगा, बाकी को हम एक झटके से देख जाएंगे। Our main portion will be the verse 4 and 5, and the rest we will just put it together in a summary. हाँ, देखिए, फरीसी जैसे सोचते थे कि यार एक पाप से के कारण ही आदमी पर ये परेशानी आती है। Pharisees used to believe that this problem comes on man because of our sins. तो कई सवाल खड़े हुए। And so many questions were raised. पहले मैं आपको बता दूं, अंधापन तीन तरह का अंधापन होता है। First, understand there are 3 kinds of blindness. एक तो होता है शारीरिक अंधापन। First is physical blindness. हम सब लोग शारीरिक अंधे पैदा हुए। नहीं, सॉरी, माफ करना, गलत बोल गया। शारीरिक अंधापन होता है। There is one physical blindness. एक होता है दिमागी अंधापन। One is mental blindness. और दिमाग से बिल्कुल ही पैदल होते हैं। Totally
totally ब्लाइंड कह दो, blind in their mind. ब्लाइंड। और दूसरे होते हैं आत्मिक अंधे। And the third are spiritually blind. हाँ, तो हम आत्मिक अंधे पैदा हुए, हम सब पैदा हुए। We are all born spiritually blind. मतलब एक शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक अंधापन So होता है। there is physical blindness, mental blindness, spiritual blindness. हाँ, ये बौद्धिक रूप से बंधा नहीं था। He was not blind mentally. हाँ, दिमाग बड़ा तेज काम करता His था। mind is very sharp. हाँ, ये शारीरिक और आत्मिक अंधा था। He was physically and spiritually blind. और प्रभु ने इससे पहले शारीरिक अंधापन दूर किया, फिर आत्मिक अंधापन The दूर। Lord first removed his physical blindness and then his spiritual blindness. अब सवाल खड़े होते हैं, ये Now- कहानी सवालों पे अड़ी खड़ी है। This question arises. This story is based on many questions. सवाल उठाइए, अंधा हुआ तो किसने पाप किया? And the question rose, if he is born blind, then who has sinned? अगर पाप किया तो कब किया? When he sinned, when did he sin? अरे ये तो जन्म से अंधा है, माँ के पेट से अंधा, तो पाप कब कर लिया इसने? Oh, he is blind right from his mother's womb, then when did he actually sin? हाँ, कह दो स्वभाव में पाप था। He says, oh, well, sin was in the nature, फिर इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। then his parents must have sinned. अरे यार, सबके माँ बाप ने पाप किया, सब अंधे क्यों नहीं पैदा हो गए? All parents have sinned, then why is it that all children are not born blind? तो इसके साथ क्यों हुआ? Why this special treatment तो to this सवाल पे boy? सवाल पे सवाल खड़े हो जाते हैं। So there are questions upon questions upon questions. हाँ, फिर हम कहते हैं यार ये औरों के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Then the question arises, it happens to others, why it happens to me, why doesn't it happen to others? हाँ, देखिए बात दरअसल ये है, The issue is, सच है कि हर पाप के कारण ही परेशानी का पैदा हुई, हर परेशानी ही पाप के कारण पैदा हुई है। it is true, every problem and trouble in this world has arisen because of sin. और फिर ताड़ना के कारण भी हमारे पास परेशानी तकलीफें आती है। And because of chastening also problems come upon us. यूहन्ना 15:5 और 14 में प्रभु कहता है, It says in John 5:14, the Lord says, देख इस फिर से पाप मत करना। behold, thou art made whole, sin no more. इन बातों के बाद यीशु से मिला और उससे कहा तू चंगा हो गया, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कहीं इससे बड़ी विपत्ति में पड़े। तो After Jesus findeth him in temple and says, he says, no sin no more, lest the worst thing happen to you. पाप के कारण पीड़ा आई है और पाप के कारण ताड़ना भी आ जाएगी। Because of sin, the pain has come. Because of sin, the chastening also will come. दोबारा पाप करेगा तो if you sin again. हाँ, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, पाप के कारण परेशानी आती है और फिर पाप करते हैं, फिर हम ताड़ना में आते हैं। No doubt about it. Because of sin, trouble comes, and you continue to sin, we are chastened also. हाँ, दूसरी बीमारी आती है, इसलिए आती है हमारे पास। The second thing, sickness comes, and why it comes is, हाँ, कि वो मौत के लिए आती है। it comes for death. हाँ, क्योंकि हमारा मरने का टाइम हो जाता है, इसलिए प्रभु बीमारी भेजता है और मर जाते हैं। Because our time to die comes, the Lord sends us sickness and we die. ईशाया 38:1 में देखते हैं, We see that in Isaiah 38:1. Isaiah 38:1. वहाँ हिजकिय्याह से कहता है, भाई तू वो बीमार पड़ गया था। Hezekiah had fallen sick. हाँ, और उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि तू अपने घराने के विषय में आज्ञा दे कि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तो In ये those days, Hezekiah was sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. उसने कहा कि भाई ये बीमारी इसलिए आएगी तू मर जाए। This sickness has come so that you will die. और यही कहानी दूसरे राजा 2:1 में है। And the same story in 2 Kings 2:1. तो ये दूसरा कारण हुआ। This is the second reason. पहला कारण होता है परेशानी के लिए, ताड़ना के लिए बीमारी आफत आती है। The first time it comes because of problems, difficulties, and the chastening happens. और दूसरा कारण होता है जब मरना होता है तब बीमारी प्रभु। And second time sickness comes when we are about to die.
और तीसरा कारण होता है And the third reason is, जो यूहन्ना 11:4 में प्रभु बताता which है, the Lord says in John 11:4, और वो कहता है कि देखो ये जो बीमारी आई है, जो उसके पास क्या नाम, Lazarus. लाजरस के पास जो बीमारी आई है, ये मौत के लिए नहीं है, ये बीमारी, ये जो This sickness that has come is not परमेश्वर की come. महिमा के लिए आई है. This sickness is not unto death, but that God be glorified through it. यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, बीमारी मृत्यु की भी होती है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो. When Jesus heard that, he said, "The sickness is not unto death, because there is a sickness unto death also. But this is for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." तो पाप के कारण, मौत के कारण और महिमा के कारण. So sickness can come because of sin, because of death, and because of for the glory of God. हाँ, इस अंधे को मतलब ये बीमारी जो थी, पाप तो था ही, सब में पाप तो स्वभाव में था, मगर ये जो अंधापन था, ये प्रभु ने इसका कारण बताया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है. Now sin is in all of us, that is true, but regarding this blind man, it was for the glory of God. हाँ, लोग जो है राजनीतिक भाषण सुनने के लिए बड़ा मजा आता है. People are really excited to hear political sermons and messages. हाँ भाई जी, मैं भी कई लाख का कोट पहनकर कई लाख को वचन सुना दूं, भाषण, राजनीतिक भाषण सुना दूं, मजा आता है. Wear clothes worth millions of rupees to give millions a political message. हाँ, ज्यादातर उसमें झूठ भरा होता है. And mostly in that there is lies. और उनके भाषणों का ना तो सर होता ना पैर होता, सर कहीं ना पैर कहीं. And their political messages, there's no head or tail of it. मगर ऐसे राजनीतिक भाषणों से अपना सर सुबह से शाम तक लोग भरते रहते हैं. But people keep on filling their mind with such political messages from morning to evening. मगर वचन को क्यों नहीं रखते? But why not the word of God? वो वचन क्यों, बड़ा अजीब है वो चिन्ह ना. That word is very strange. हाँ भाई, ये आवाज बंद करें भाई, किसकी है भाई जी, बंद करें प्लीज. वो वचन जो दिखाता वो देखना नहीं चाहते वो. The word, what it wants to show, they don't want to see. क्योंकि वचन हमारी असलियत दिखा देता है. Because the word shows us our true nature. और अपनी असलियत हम देखना नहीं चाहते. And I don't want to see my true nature. हम तो अपनी मक्कारी दिखाते हैं. I want to show my hypocrisy. और वचन जब हमारी असलियत दिखाता है तो हम तिलमिला जाते हैं. And when the word shows me my reality, I really get shaken up. और राजनीतिक भाषण में तो हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने थोड़े देखते हैं. In political sermons, we listen to other people's faults and failures, not our own. हाँ, तो इसलिए हमें वचन सुनने से कटना पड़ता है और सांसारिक बातें सुनने में मजा आता है. So we turn away from the word of God and we want to hear the things of the world. हाँ, देखिए, प्रभु कई बार कांटे और परेशानी हमारे जीवन में रखता है, जरूरी Many times the Lord keeps problems and thorns in our lives. They are necessary. वो जरूरी है और इसकी जरूरत है, इसलिए प्रभु रखता है. They are necessary. That is why the Lord keeps them. इन जरूरतों से मैं अपने आप को जांचता रहता हूँ. Through these problems, I keep on examining myself. और मैं पहचानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से. And I realize I am a nobody. Whatever I am by the grace of God. आइए हम पहले पद पर जाते हैं, हम फिर जल्दी से निकलकर हम जो मेन पद है वो 4 और 5 उस पर. Shall we quickly go to verse 1 and then we'll quickly go to verse 4 and 5 after that. फटाफट verse 1 भाई जी. Please read verse 1. Now फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो As Jesus passed by, he saw a man. उसने जाते हुए एक आदमी को देखा. Jesus passing by saw a man. उस आदमी ने नहीं देखा क्योंकि वो देख ही नहीं सकता था. The man did not see because he could not see. हाँ, अब इतने सारे लोगों में प्रभु ने उसको देखा. In all these so many people, the Lord saw this man. 7 अरब लोगों में प्रभु ने आपकी तरफ देखा. In 7 billion people, the Lord saw you. और आपसे बात की. And spoke to you. हाँ, आपने नहीं देखा उसकी तरफ. You did not see him. उसने आपकी तरफ देखा. But he saw you. उसने आपकी तरफ देखा. He saw you. हम तो देख ही नहीं सकते थे. We could not see by ourselves. देखिए हम कितने भाग्यशाली आदमी हैं. How fortunate we are.
ये भिखारी अनपढ़ जो आदमी है, the beggars and uneducated, हाँ, ये हर रोज लाखों लोगों को जीवन की सच्चाई पढ़ा रहा है इस अध्याय के द्वारा। this illiterate, poor beggar is giving the teaching of life to millions every day. हाँ, और इस अंधे भिखारी के, अनपढ़ के जीवन से परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। Through this blind, illiterate beggar, we are able to see the glory of God. हाँ, ये यीशु को नहीं जानता था, He did not know Jesus. ये यीशु को बारे में नहीं जानता था। He did not know about Jesus Christ. यीशु ने अपने आप को इस पर प्रकट किया। But the Lord Jesus Christ revealed himself to him. हाँ, देखिए, मैंने आपसे बताया शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अंधापन होता है। We have told you there is physical blindness, mental blindness, spiritual blindness. हाँ, इसे शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक तौर पर प्रभु ने चंगा किया और अपने लिए उपयोगी पात्र बनाकर इस्तेमाल किया। The Lord healed him physically, mentally, and spiritually, and made him a useful vessel for himself. हाँ, भिखारी था, अनपढ़ था, देखिए उसके बाद कितना उपयोगी बन गया। He was a beggar, illiterate, and yet how mightily the Lord used him. ऐसे पात्र में हम परमेश्वर की महिमा को देखने लगे। In such a vessel, we are able to see the glory of God. देखिए, इसके अंदर अच्छे होने की इच्छा ही नहीं थी, He did not have any desire to become good, ना कोई आशा थी nor any hope कि मैं कभी अच्छा हो सकता हूँ। that one day I'll become a good man. ये आशा रहित जीवन जी रहा था। He was living a hopeless life. हाँ, और कुछ भी अच्छा नहीं था इसके जीवन में There was जीने, nothing good in his life to live, और जीने के लिए भी इसके पास कुछ अच्छा नहीं था। and nothing good for him to live, nothing ahead for him to live. प्रभु ने इसके अंदर अच्छी इच्छा बनाई। But the Lord put a good desire in his heart. हाँ, प्रभु ने इससे सवाल से कहा, मट्टी लगाई, सानी इसके लगा दी, मैं बात करूंगा इसके बारे में। और The Lord used clay and put it on his eyes. We'll talk about later. हाँ, और इसने कहा, वो शीलो के तालाब में जाके धो ले भाई। And said, go and wash in the pool of Shiloh. इसने नामान की तरह सवाल नहीं खड़े किए। He did not raise any questions like Naaman. क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। How, why, what will happen? Nothing. ये सीधा चला गया। He simply went straight to the pool of Shiloh. नहीं, कैसे करा इसने ऐसा? How did he do that? ये तो यीशु के बारे में जानता नहीं था। He didn't know about Jesus Christ. उसने कहा, ऐसे मट्टी लगाने से कैसे हो जाएगा, क्या And करूं? he would have said, how can it happen by putting clay on my कोई eyes? सवाल नहीं खड़ा किया इसने, No question. चला गया। He went straight ahead. नमान ने तो सवाल खड़े कर दिए थे जब उससे कहा था येरो में जाकर, वो यरदन में जाकर धो ले। Naaman had raised questions when he told him go wash in the river Jordan. हाँ, प्रभु ने क्या किया भाई जी? थूक को लिया पहले। What did the Lord do? He first took saliva. यार, थूक बड़ा गंदी चीज रहती है। Spit is a very shameful thing. अगर कोई आपसे बात कर रहा है, उसके मुंह का थूक आपके पास पड़ जाए मुंह पे, तो आप कैसे? If somebody is speaking to you and his spit comes and falls on you, how you feel so dirty, you want to remove it. हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमियों की भी बड़ी सुंदर आदत है, परंपरा है उनकी, कहीं भी जाओ वहीं थूक देते हैं। And we very educated people also, they have a beautiful habit. Wherever they go, they spit. मैं कई जगह बैंक में जाता हूँ, सीढ़ियों पे चढ़ता हूँ, पान के थूक इतनी गंदगी भरी होती है। Sometimes we go to the bank, we climb the steps. There are these pan spits staining the wall. हाँ, मैं कह रहा हूँ यार, ये पढ़े लिखे हैं बैंक में जो काम करते हैं। And I'm thinking these are educated people working in the bank. पता नहीं, खैर अब मैं कह नहीं सकता। मगर मैं एक बात देखता हूँ, थूक बड़ी गंदी चीज मानी जाती है। So one thing I know, spit is considered to be very dirty. और मरकुस 7:16 में कहता है कि आदमी से, Mark 7:16, कि आदमी से जो कुछ निकलता है वो गंदा ही निकलता है। whatever comes out of a man is filthy. हाँ, मार्क 7:16 में लिखा है इस बात के। Mark 7:16 it is written. ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से आकर समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं एक नहीं, जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही अशुद्ध करती हैं, उसे अशुद्ध करती हैं। There is nothing from without a man that entering into him can defile him, but that the things which come out of him, those are they that defile the man. हाँ, हमारी सांस भी निकलती, वो भी गंदी हो गई। Even our breath that comes out is defiling. थूक हो, हमारी सोच हो, कुछ भी चीज हो, Spit or thinking or anything, हमारे विचार, हमारे काम सब गंदे हैं। our works, everything is filthy.
और गंदगी में से गंदगी ही निकलेगी, और क्या निकलेगी? And filth will come out of filth. और तो कुछ निकलने वाले है नहीं। Nothing good will come out. हाँ, मगर प्रभु ने एक बात की। But the Lord said one thing. हाँ, प्रभु पवित्र 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 परमेश्वर है। The Lord is a holy, holy, holy God. और पवित्र में से क्या निकलेगा? And what will come out of holiness? हाँ, क्या निकलेगा? What will come out of holiness? पवित्रता ही निकलेगी। Holiness will come out of holiness. चाहे उसकी सांस निकलती है, उसमें भी जीवन होता है और काम कर जाता है। Even in his breath there is life and it works. उसके थूक में भी जीवन है भाई जी। Even life, even in his spit, in his saliva. उसमें कुछ गंदगी नहीं है, अशुद्धता नहीं उसके There थूक में is भी। no uncleanness, nothing wrong in his saliva also. प्रभु ने मट्टी ली, Lord took clay. और मट्टी के अंदर थूका। The Lord took mud and he spat in the mud. और ऐसे मिलाया। And he mixed it. और ऐसे किया, ऐसे मतलब ऐसे किया। And then he took it like a paste. हाँ, अब उसके जहाँ आँख थी ना अंधे की, Now where the blind man's eyes were, वहाँ आँख की जगह थी, आँख नहीं थी वहाँ। there was a place for an eye but no eye. वहाँ पर जगह थी आँख की, There was a slot for an eye मगर वहाँ आँख नहीं थी। but no eye. अब वहाँ पर उसका अभिषेक कर दिया। And there he anointed it. लिखा है, अब अंग्रेजी में लिखा है anointed, शब्द को लिखा है। हमारे तो मट्टी सानी और लगा दी, ये नहीं, लगाना शब्द नहीं है वहाँ पर। In English the word is anointed. हाँ, लगाना नहीं है। It is not putting, it is anointing. यह कहकर उसने थूका, भूमि पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और यह कहकर उसकी आंखों पर लगा नहीं दी, anointed। He anointed the man's eyes. उसको छू दिया उससे कैसे। He anointed his eyes. और वहां पर आंख बन गई एकदम। And it became an eye. वहां कुछ नहीं था, आंख वो गोले वोले कुछ नहीं थे आंख के जो होते हैं। So the eye itself, नहीं। the eye itself was not there. बन गई, मट्टी से बना दी। And with clay he made the eyes. ये बड़ा काम नहीं है, कुछ भी बड़ा It was not a big work for the Lord. जो वो मट्टी से पूरा आदमी बना सकता है, तो आंख बनाने में क्या बात है भाई। When he can make an entire human being from clay, then what is wrong in making an eye? What is the big deal in making an eye? हाँ, कहानी लंबी होकर फैल ना जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे चल The रहा हूँ। story may not spread out too much. I'm quickly going through it. हाँ, अब सवाल उठा भाई साहब, फिर सवाल ही कहा है पूरी कहानी में। And there are questions in this story. हाँ, बहुत सारों ने पूछा, सवाल उठे, नहीं ये वो नहीं है, दूसरा है, इसकी आंखें कैसे ठीक हो गई, कैसे, किसने की, क्या हुई, बहुत सारी बात। Many people raise question, no, this is not the same man. How can this man be like this with eyes? They could not believe it. सवालों की झड़ी लग गई साहब। A whole series of questions. हाँ, धर्म गुरुओं को भी बड़ी परेशानी पैदा हो गई। The religious leaders also really troubled. ये परेशानी नहीं, उसकी आंख सही हो गई। Not this, that his eyes have been healed. क्योंकि हमारा धर्म गड़बड़ा जाएगा यार, फिर मजा ही खत्म, क्या खत्म, सब कुछ। But that our religion will all get disturbed, all the fun is gone. उन्हें अंधे भिखारी की क्या चिंता, उन्हें तो धर्म की चिंता। They don't care about this beggar at all. ऐसे तो सैकड़ों होते, रोज मरते हैं, मरेंगे क्या इनके। There are many like this, they die every day. हाँ, उनका तो धर्म गड़बड़ा रहा था ना। Their whole religion gets shaken up. बुलाया उसे, उसके माँ बाप को बुलाया। They called his parents. हाँ, सुना, फिर सुना। And they heard. और फिर समझाया उसे भी, देखिए। And then they explained to him, this man is a sinner. अब ये आदमी बिल्कुल अकल से पैदा तो था नहीं। But this blind man, he was not mentally blind. इसने सवाल किए। He also raised questions. यूं को भाई पापी है तो कैसे ऐसा काम कर सकता है? If he is a sinner, how can he do something like this? तो इस सवाल में एक सवाल छिपा हुआ था, तुम धर्मी हो, तुम क्यों नहीं कर सके? So the question had a question. If you are so righteous, why Hidden could you not question. do it? A hidden question. If you are so righteous, why could you not do it? अब बड़ी बात, इन चोट लगने वाली थी। Now it was something that really hurt them. यूं का तो कुछ भी कहते रहो तुम। Whatever you might say. हाँ, मैं एक बात मैं जानता हूँ। I know one thing. मैं अंधा था, मुझे चंगा कर दिया। I was blind, now I see. तुम्हारे बस की बात ही नहीं। You could not do it. मतलब इस तरह उसे कहा, वो कहने लगा, तू क्या मानता है उसके बारे में? What do you say about him? क्योंकि भाई आम आदमी तो हो नहीं सकता, ये तो He cannot be an ordinary man. He must be a prophet.
फिर वो दोबारा पूछा उससे, Then he asked him again. कुछ ये आदमी तेज ज्यादा था कुछ मेरे ख्याल। But this man was really sharp. हाँ, इनने और आग लगाने को एक सवाल कर दिया। And he put up another question and set them on fire. वो तिल मिला गया उस सवाल से। They really got all shaken up by that. यूं कहा, यार तुम उसका चेला बनना चाहते हो, गुरु मानोगे उसे? Do you want to become his disciple? ओ भाई साहब, वो तो हम तो मूसा के चेले, तू ही बन। और भाई जी, And then they're completely lost it. We are Moses' disciples. You only become disciple you want. जवाब तो बन नहीं सका, उसे भगा दिया। And since they could not answer him, they cast him out. बहुत यार निर्भीक आदमी था, डरावा नहीं। He was a really fearless person. भिखारी तो, मगर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, कोई उसमें हीन भावना नहीं थी। He was a beggar, but he had no inferiority ना complex. उसे कोई डर था भाई थे। No fear also. यूं कहा, मेरा क्या लोगे? What will you take from me? ऐसा Money? वो है नहीं। I have nothing. पद वो है नहीं। Status? I have nothing. मेरा मान सम्मान वो मेरे पास है नहीं। My honor and respect? I don't have it. हाँ, तो क्या ले सकते हो? So what can you take from me? हाँ, तो इन धर्मी लोगों को कोई भी चिंता नहीं कि आदमी का क्या होगा। And these religious leaders have no concern what will happen to any इन person. युवतियों को आदमी मरता मर जाए। If for these Jews, if a man dies, let him die. हाँ, इनके लिए आदमी इंसान की कोई कीमत नहीं थी। इन्होंने ना इंसान मरता मर जाए, इंसानियत मरती है मर जाए। They have no value for human life. Let humans die if they die. Let humanity die if it dies. हाँ, इनको कोई चिंता नहीं। They are not concerned. देखिए इन बेवकूफों को देखो। Look at these fools. सबत के मानने के लिए ये कोई भी पाप, मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए कोई भी अधर्म कर सकते थे, कोई भी पाप कर सकते। In order to protect their religion, they could do anything immoral, anything evil and wrong. और धर्म के ने घमंड, विरोध ने, घमंड ने, जलन ने बिल्कुल अंधा कर दिया था। And this opposition and bitterness and jealousy had made them completely blind. वो कह रहा तुम आंख रखते हुए अंधे हो, बेहतर ये होता कि तुम अंधे होते। He says, while keeping your eye, you are blind. It was better if you were blind. प्रियो, आपके अंदर अगर जलन, विरोध कुछ भी है, वो आपको आत्मिक रूप से अंधा कर देगी। If you have jealousy, bitterness in your heart, it will make you spiritually blind. हाँ, एक भाई से कहा गया, One brother was told, आपने इसके विरुद्ध में ये बात कही। you spoke this thing against this person. उसने कहा, मैंने माफी मांग ली भाई, मेरे से गलती हो गई। And he said, brother, I asked forgiveness from that person. वो विश्वासी, अंधा विश्वासी क्या कहता है, क्योंकि माफी मांगने से क्या होता है? And that brother, he says, what will happen? What does it mean asking forgiveness? What happens because of that? ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ बिल्कुल। I am telling you the truth. He said that. What can happen by asking forgiveness? बेवकूफ, माफी मांगने से एक डाकू स्वर्ग चला जाता है। तू क्या माफी देगा? Asking forgiveness, a dacoit can go to heaven. हाँ, तेरे अंदर तो है ही नहीं माफी मांगने का, वो आत्मा ही नहीं है। Don't have the spirit to ask forgiveness. ये बात शब्द कहे नहीं उससे मैं। I did not say these words to him at that time. हाँ, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ही हमें माफी मांगने और माफी देने की सामर्थ्य देती है। Because it is the Spirit of God that gives us the ability to ask forgiveness and give forgiveness. बस हम आगे जाएंगे, हमारा विषय ये नहीं है। We go forward from this. देखिए एक बात मैं आपके सामने अब मेन पद पर आ जाता हूँ। I will now come to the main verse with you. हाँ, देखिए 4 और 5 हमारा मुख्य है। The verse 9th chapter, verse 4 and 5 are our main verses today. जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। About which we like to speak to you now. मैं थोड़ी जल्दी से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। I quickly want to speak to you about this. भाई 4 और 5 पद पढ़ दें आप। If you read verse 4 and 5, 9, 4 and 5. I must work the works. I must work. पढ़िए भाई पढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन में हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। I must. जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. देखिए वो
उस रात की बात कह रहा है जो ये वाली वो आत्मिक रात, आत्मिक अंधेरेपन की बात कर रहा है वो। He is talking about a spiritual night and spiritual darkness. और जब ये ज्योति है, जो वचन ज्योति है, ये उठा ली जाएगी। When this, the word which is the light, will be taken away. हाँ, ये वचन उठा लिया जाएगा। The word will be taken away. फिर आमोस कहता है 1:11 में कहता है, And then Amos says in Amos 1:11, हाँ, उस समय कहता है कि लोगों में भूख प्यास तो होगी, and he says people will have hunger. और वो वचन को, वास्तविक वचन को ढूंढने के लिए एक देश से दूसरे देश तक भी जाएंगे। And they will go from one land to the other seeking for the truth. हाँ, पढ़ दीजिएगा मैंने। हाँ, यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या, नहीं भाई, नहीं, मैं नहीं भाई, मैं गलत, आमोस 11 गलत बता गया शायद। मैं 1 मिनट, वो है मेरे ख्याल में पद, 1 मिनट भाई जी, 1 मिनट, वो गलत पद हो गया। ये आमोस 1:11 पढ़ा था भाई ना? हाँ जी भाई, जी भाई, जी भाई। या 11 होगा शायद मेरे ख्याल में। चलिए आप देख लेना, वैसे है ये पद। हाँ, And so this verse is there in Amos. मैं गड़बड़ा गया हूँ कोई। अच्छा, तो उसने कहा कि वो दिन अचानक आने वाला। हाँ, पढ़िए। कहना तो नहीं भाई, पढ़ना। परमेश्वर यहोवा की वाणी, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश से महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। हाँ, ठीक है, यही है। हाँ, यही But हाँ, कौन से verse से भाई? हाँ, परंतु यहोवा के वचनों की सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। परंतु उसको नहीं पाएंगे क्योंकि आत्मिक अंधेरा आ जाएगा। ये 8 है ना भाई, 8 आमोस 8 अध्याय 11-12। हाँ, 11-12 है। Behold, the days are coming, says the Lord God, that I'll send a famine on the land, not a famine of bread or a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but they shall not find it. हाँ भाई, सॉरी, मैं गलत आपको थोड़ा टाइम लगा। तो वो समय आने वाला है। The time is coming. और प्रभु कह रहा है वो रात आने वाली है। And the Lord says that night is coming. हाँ, दोनों बातों में से एक बात हो सकती है। One of the two things will happen. या मौत पहले आ जाए, या रात पहले। Either the death will come or the night will come. हाँ, कौन बताए, दोनों में है, कोई भी पहले आ सकती है। Both things are possible. हाँ, तो हम एक बात देखते हैं यहाँ पर। And we see one thing here. जो प्रभु हमारी आंखें खोले तो हम उसकी महिमा को देख सकें। The Lord may open our eyes, may behold His glory. और देख सकें कि हम अपने आप को, कि मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा हो रही है या नहीं हो रही है। And to reflect on my life, is God being glorified by my life or not? हाँ, आइए हम इस बात में कि वो रात आने वाली है इसके बारे में देखें। Now let us see about this. The light is coming. लगभग 2 सदी पहले मुझे बड़ा अजीब बात लगती है। नेपोलियन बोनापार्ट कोई स्वर्गीय आदमी तो था नहीं, सांसारिक आदमी था बिल्कुल। About 2 centuries back, Napoleon Bonaparte was a completely worldly man, not a spiritual man. हाँ, एक बहुत बड़ा योद्धा के रूप में माना जाता है। He's considered to be one of the most famous generals. तो उसकी चढ़ाई यूरोप और उस तरफ रूस की तरफ ज्यादा रही। And his empire, his war was more towards Europe and Russia. किसी ने कहा यार तू चीन के से क्यों नहीं लड़ाई लेता चीन And को? somebody asked him, why don't you have war with China? मेरे आज भी समझ में नहीं आती ये बात कही कैसे नेपोलियन बोनापार्ट। And I don't understand even till today how did Napoleon say this. नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही। Napoleon Bonaparte said one thing. कि चीन जो सोया हुआ शेर है, सोया हुआ शैतान है। That China is a sleeping lion. भाई शैतान भी बोल दो भाई। A sleeping dragon. हाँ, और ड्रैगन उसका चिन्ह है वास्तव में। Because, जो उसका राष्ट्र में अपना चीन का जो एक चिन्ह है ना, बड़ा ड्रैगन है। because the dragon is the sign of China. हाँ, आपने देखा होगा अक्सर। You must have seen it. यूं कहीं ये सोया हुआ शैतान है, ड्रैगन है, इसे जगा रहा है, तो ये जागते ही
पूरी तरह लग जाएगा कि किस तरह मैं संसार को अपने वश में कर। Says he is a sleeping Satan, he is a sleeping dragon. If he wakes up, he'll try to get the whole world under him. हाँ, आज मैं ये सोच रहा यार, ये This is what I am thinking today. चाइना जाग गया है, China has woken up, अब उसका यही है कि वो किस तरह पूरे संसार को वश में कर ले। and now it is his great desire to take the world under its control. मेरी बात समझ में नहीं आई, ये बात कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने, I don't understand how did Napoleon say this. हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात कही, मैं बात, Napoleon Bonaparte said this, और आज हम इस बात को सत्य रूप में देख लेंगे। and we see this happening truthfully. हाँ, मगर हम आगे चलेंगे तो हमें पता लगेगा कुछ बात। If we go forward, we will see. देखिए, सत्य को सत्य कभी भी असत्य के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। True lies can never stand up against the truth. हाँ, लड़ाई तो सत्य और असत्य की है। The war is between truth and lies. सत्य का विरोध जो करता है वो असत्य ही करेगा। The only lies will oppose the truth. अगर आप सत्य का विरोध कर रहे हैं, सच्चे लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर असत्य छिपा हुआ है। If you are opposing people of the truth, you're opposing the truth, and there is lies somewhere inside you. हाँ, हाँ, बस ये है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, आप जलन, विरोध, बैर, कहीं ना कहीं किसी भयानक पाप आपके अंदर। That you're not able to see, but this bitterness, jealousy, pride is within you. देखिए, एक विश्वासी पाप कर सकता है, कर भी जाता है। A believer can sin, he does end up sinning. दाऊद पाप में बना रहा काफी कुछ समय तक, David was in sin for quite a long मगर वो time. क्या कहता है, What does he say? वो पाप का मजा नहीं ले सका। He could not enjoy that sin. वो कह रहा है मेरी हड्डियों में बेचैनी थी, रात और दिन मैं बेचैन रहता था। पाप, He said there was so much anxiety even in my bones day and हाँ, night. मेरे ख्याल में भजन 38 में कहता, 38 में कहता है कि मैं रात और दिन बेचैन रहता था। He says in Psalm 38, I was anxious day and night. हाँ, मेरा मुश्किल था मेरे निकालना, मैं बहुत It बेचैन, was so difficult for me to go through that time जब तक मैंने अपने पाप को मान नहीं लिया। until I acknowledged my sin. तो वो पाप के साथ तो जी नहीं सकता एक वास्तविक विश्वासी। A true believer cannot live with sin. हाँ, देखिए, इस आदमी के थोड़ा आगे जाते, प्रभु हमें एक बात बताता है। Go a little ahead in this chapter, the Lord tells us हाँ, one thing. वो कह रहा है ये रात आने वाली है भाई, रात आने वाली है। The night is coming. देखिए, रात की जो, दिन की जो सुविधाएं हैं, मौके हैं, वो रात में नहीं होते, मिलते The हैं। opportunities of the day are not there in the night. हाँ, जो काम आप दिन में कर सकते हैं वो रात में नहीं हो पाता। The उसको है works that you can do in the daytime, you cannot do them at और night. दिन बना इसलिए कि वो काम किया जाए। The day has been made for work. हाँ, देखिए, आत्मिक तौर पर भी प्रभु एक और बात करता, जरा ये पद लगाएंगे भाई मेरे लिए। In spiritual terms also, the Lord says one thing. If you put up हाँ, this verse, वो 4 पद, 9:4, John 9:4. John 9:4. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no man can work. जिसने मुझे भेजा है, हमें लगा रहा हूं भाई। जिसने मुझे भेजा है, मैं उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ भाई, जरा सा पद लगा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जी भाई लगा। ध्यान दीजिएगा इस पद। Now hear this carefully. दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वहाँ लिखा है I must work the works of him while it is day. हाँ, वो कह रहा करना है आपको, कोई You दूसरा have to विकल्प do नहीं it. है, There is no other alternative. कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। There is no substitute. करना है, You must do it. नहीं करोगे तो क्या होगा? What will happen if you don't do it? फिर करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। Then even if you want to do it, you'll not आज be able जो to चाहो, do it. जैसे चाहो, जो कर लो, Today you can do whatever you want to do. मगर इस एक एक दिन की बड़ी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। But understand, you will have to pay a big price for this carelessness. प्रभु आपके लिए और क्या करे, सुबह शाम आपके पास आता है, What आपको all- जगाता है, आपको झंझोड़ देता है। What all the Lord will do is coming to you morning and evening to wake you and shake you. हाँ, वो कह रहा करना आवश्यक जरूरी है, अगर नहीं He करोगे says you must do it. If you not do it, आपके घरों में आकर सुबह शाम चिल्लाता है।
He is crying out to you in your homes day and उस night. भाई ने यूं कहा, इस भाई ने यूं कहा, उसने मेरे लिए यूं कहा। भाई कहने दो, तू मेरे लिए लिखा है कि तुम्हें करना आवश्यक है। This brother said this about me, this brother said that about me. Let them say, you have to do the work of God. हाँ भाई, एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ, इसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इस लापरवाही की। One thing you remember, you will have to pay a big price for this carelessness. हाँ, जब आप करना भी चाहोगे नहीं कर पाओगे वो रात। Even when you want to do, you will not be in the night comes. विश्वासियों के लिखा अवश्य है, करना It है, is written जरूरी है। for believers, they have to do it, they must do it. हाँ, जरूरी है, Must do it. प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। Evans, I want to say one thing to you. आज तो सारी सुविधाएं, जूम है, आपके पास बहुत सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। Today you have all provisions, you've got the Zoom ministry, all things are available to वो you. रात आने वाली बता रहा है, Since the night is coming, कुछ नहीं कर सकते। can't do anything. प्रियो, जो आज इस सुविधा में नहीं कर सके वो क्या करेंगे? तो सिर्फ They who could not do all this, even in this facility and comfort, what will they do? हाँ, देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, One thing that I will tell you, हर एक के लिए काम जरूरी है। for each one, work is important. जिसे प्रभु उद्धार देता है उसके लिए काम अनिवार्य है, He who has been born again, for him work is essential. जरूरी है। Essential. अगर आप नहीं करते तो पाप करते हैं, If you don't work, you sin. आप पाप कर रहे हैं। You are sinning. आप देखिए कैसे, देखिए बात। How? आदम को बनाया, God made Adam, उसके लिए काम रख दिया। gave him work. अभी पाप की तो बात ही नहीं हुई। It is not yet talking about sin. जैसे आदम को बनाया, उसके पाप रख रखा कि ये काम करेगा बाग में। तो The moment God made Adam, gave him work to do. हाँ, क्यों? Why? जो भी आत्मिक जन है, जो भी उद्धार पाया उसके लिए काम है। He who has a spiritual person, there is work for him. परमेश्वर के लिए काम है, वो There is काम work करता for है, the Lord. He वो काम works. कर रहा है। पढ़िएगा यूहन्ना 5:17। Read John 5:17. John 5:17. यूहन्ना I 5 work hereunto and my Father works. John 5:17. मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हाँ, My वो कह- Father has been working until now, and I have been working. अभी तक काम करता है, Even अभी। till now, He is working. हम स्वर्ग में भी काम करेंगे, He will work in heaven also. और जो काम नहीं करता वो पाप करता है। And he who doesn't work, he sins. आप ज्योति की संतान है, आप काम करते हैं प्रभु के लिए। You are the children of light. You work for the Lord. हाँ, नहीं करते तो आप पाप कर रहे हैं। If you don't, you are sinning वो रात against आने Him. वाली है जिसमें नहीं कर सकते। The night is coming when no man can work. मैं एक मुझे भाई उसका नाम का प्रोनाउंसिएशन एडनबर्ग का भाई था ये। मैं बता लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ। There was this brother from Edinburgh. हाँ हाँ, ये अब इसका रॉबर्ट मर्फी, ये वाला ये भाई है ये। This brother Robert Murray McCheyne. इसके बारे में McCheyne. मैचेनी है, रॉबर्ट भाई जो था, ये सिर्फ 30 साल के करीबन जिया, 30 साल। He lived for only about 30 years. हाँ, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। I want to talk about him. आप इसको बारे में जाकर नेट पर और देख सकते हैं। You can read more about him on the internet. ये 7.5 साल इसने सेवा की सिर्फ। He served the Lord only for 7.5 ये years 30 साल में मर गया। and died at the age of 30. ये बहुत बढ़िया कपड़े पहनता था सब। Used to wear very fine clothes. हम भाई, आप सोचिए लगभग 200 साल पहले अगर कोई प्रचारक ऐसे कपड़े पहने तो बड़ी गंभीर बात खड़ी हो जाती। Imagine 200 years back, if a preacher would wear such fine clothes, must be a very terrible thing. हाँ भाई जी, उसको तो बड़ा गंभीर होना चाहिए। He ought to be very serious. उसके आंखों में भी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। There should not even be a smile in his eyes. उसके कपड़ों से मातम और शराफत टपकनी चाहिए। From his clothes, there should be great solemnity and mourning. तभी तो शैतान संत की पहचान है उसकी। That is the mark of a saint. हाँ, तुम सफेद कपड़े नहीं पहनते, तुम You संसारिक don't कपड़े wear पहनते, white तुम संसारिक clothes. You are so carnal and worldly. बड़ा विरोध था साहब बेचारे ने। Lot of opposition there was. अब ये बड़ा प्यारा आदमी था, ये He चित्रकार was a very good person, very lovely man. He was also a painter.
हाँ, ये गीत भी लिखता था, He used to पोएट write भी songs था, also. He was a poet also. ये ड्राइंग बनाता था, He used to make drawings also. ये अक्सर बनाता, जैसे ये लिखता था कुछ काम करता होता था, वहाँ चित्र बनाता रहता था बाद में। As he would be writing, he would be doodling along with that. हाँ हाँ, तो बड़ी मुश्किल थी इसके लिए। It's very difficult for him. हाँ, मगर ये ज्यादातर चित्र पता क्या बनाता था? But you know, mostly what did he doodle? इसकी सारी पेंटिंग में सूरज डूब रहा है, शाम हो गई, In रात his आने वाली है। paintings, that the sun is setting and the night is coming. और ये पेपर में जब लिखते हुए ऊपर बनाता था वो चित्र, उसमें भी सूरज डूबता हुआ दिखाता था। And even when he was writing something and he would doodle, he will make the painting of a sun setting. हाँ, क्यों बताता था? क्यों वो You know रात आ- why? Night is coming. हाँ, अब उसे मालूम था या तो रात आएगी या मौत आएगी। He knew either death will come or night will come. हाँ, मगर इस बेचारे के लिए मौत पहले आ गई, रात बाद But नहीं। for him, night didn't come, but death came first. 7.5 साल इसने सब सेवका की, Only served the Lord 7.5 years. और ये हमेशा इस चित्र को यूं रखता था कि इसे याद रहे कि वो रात आने वाली है। And he would always keep the picture in such a way the night is coming. तो लोग इसे ऊपर से देखते थे, यार ये बड़ा मस्त आदमी दिखाई देता। And people would see him from outside, he seems to be a very fun-loving person. हाँ, बड़ा बोलना चालना, उसमें वो संतों वाली शराफत नहीं दिखाई देती। Conversation, everything, there is no solemnity of a saint in him. हाँ, तो मगर एक बात बताऊं मैं आपको, But you know one thing I'll tell you. ये 3 घंटे खड़े होकर प्रार्थना करता था, क्योंकि बैठा यूंगा मैं सो जाऊंगा। He would pray 3 hours standing because he said, if I will sit down, I will go off to sleep. 3 घंटे खड़े होकर प्रार्थना। 3 hours he would stand and pray. ये बीमारी से मरा है बहुत। He died of sickness. फिर लोग कहते थे इसके बारे में, People used to say about him, जब ये संदेश देना शुरू होता था, when he began to give a message, अब अपनी कुर्सियों पर तैयार होकर बैठ जाओ, sit down ready on your chairs. अपनी कुर्सियों पर रोने के लिए तैयार बैठ जाओ, Be ready to cry in your chairs. रोने के लिए बैठ जाओ। Be ready to cry. इसने 7.5 साल बिताए अपने जीवन के। He spent 7.5 years in ministry. मैं कह प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ऐसे But we thank the Lord for him. ये हमेशा याद रखता था वो रात आने वाली है या मौत आने वाली है। Always knew either death will come, night will come. हाँ, प्रियो, ये मेरे और आपके साथ ये जिंदगी दिखाती है, कई सवाल खड़े करती है, मुझे और आपको मजबूर करती है कि मैं और आप अपने आप को जांचें। This life shows us many things about ourselves, convicts us to examine ourselves. देखिए, कामों से कभी उद्धार नहीं, मैं ये बात मानता हूँ, I agree that salvation is not by works, पर आपके काम ये प्रकट करते हैं कि आपका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ। but your works show whether you are saved or not. हाँ, आज अगर आप लापरवाही से जी रहे हैं, If today you live with carelessness, हाँ, आपके पास मौके और समय की कीमत नहीं है, you don't have value for the opportunity that has been given to you, तो देखिए, या तो मौत आने वाली है या वो रात आने वाली है आपके लिए। then either death will come or the night will come. हाँ प्रियो, ऐसे लोगों को, मुझे उन लोगों के उद्धार में शक आता है जो प्रार्थना में जिनका मन नहीं लगता। Dear ones, I have a real question mark on their salvation who don't like to spend time in prayer. हाँ, देखिए, दिन पर दिन अंधकार की शक्तियां प्रबल हो रही हैं, रात का राज्य बढ़ता जा रहा है। Day by day, the powers of darkness are growing and the power of the night is increasing. बूढ़ों को सवाल उठते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो खत्म। And question rises for old people, what can we do? Our time is up. हाँ, वो प्रार्थना कर सकते हैं, They can pray, फोन कर सकते हैं, they can phone, लोगों को फोन के द्वारा मिल सकते हैं। they can talk to people, meet people via phone. हाँ, क्यों नहीं? Why not? हमारे एक भाई ने अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकता। We have a brother who is disabled, can't walk. मगर उसने फोन के द्वारा आज एक मंडली उसके द्वारा चल रही है। But through phone, the Lord has raised an assembly through him. लोग आने लगे, इकट्ठे होने लगे, मेज लग गई, People started coming, people started gathering, the table got established. बिल्कुल अपाहिज है वो,
लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर सकता अपने आप। He is completely disabled. He can't even use the facilities. यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों ने उसे देखा भी होगा। There are some sitting here who might have met him also. और मंडली खड़ी है भाई जी, And there is an assembly through him, 40-50 people gathered. जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। He can't walk. He can't get out of this. उसे प्रभु करा क्यों नहीं कर सकता? उसके द्वारा कर सकता, आपके द्वारा क्यों नहीं कर सकता? Why can't the Lord do the same through you? क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर करने की इच्छा ही नहीं है। The Lord can't do it because you don't have a desire to do it. आप चाहते ही नहीं इसलिए नहीं कर सकते। You don't want to do it, so He can't do it. हाँ, देखिए, प्रार्थना कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, इन बातों से कर सकते हैं। You can call, you can meet people. बहनें बड़ा आराम से बना सकती हैं, हम तो औरतें हैं, हम क्या कर सकते हैं। Sisters can say, oh, we are so weak, we can't do anything. भाई आपको मालूम नहीं है? Don't you know? नहीं, मुझे कहाँ मालूम है, आप बताओ। How do you know? I don't know. लिखा है बहनें प्रचार ना करें। Oh, sisters must not preach. ये बहुत अच्छा सवाल है आपको बहाना बनाने के लिए। Very good question, very good reason for an excuse. मैं इतनी बाइबल तो नहीं जानता, मगर इतना थोड़ी बहुत तो सीख ही गया हूँ। I don't know that much Bible, but at least I know a little bit. सामरी औरत को जैसे उद्धार दिया वैसे काम दिया नहीं दिया? The Samaritan woman, as soon as she was born, she was given a job to do. हाँ, मैं मानता हूँ मंडली में प्रचार नहीं करना। I know, I believe women cannot preach in the assembly. हाँ, मगर बाइबल का पूरा खंगाल कर देखिए कितनी औरतें जिन्होंने प्रचार किया और काम किया। But shake the Bible and see so many women who preached and served the Lord. मेरे पास टाइम अलाउ नहीं करता, नहीं तो मैं आपको फोन करके पूछ लेना अगर बहस करना ही जरूरी है आपका तो। And if you really want to argue about it, you can call up and talk to me about it. हाँ, मेरे पास बहुत सारे बात कि इस बात के लिए समझाने के लिए सरलता है बड़ी। Many simple examples are there to explain this. देखिए, आपके जीवन में एक तोड़ा दिया हो या 5 तोड़े दिए हो, The Lord has given you 1 talent or 5. आपको उद्धार दिया है, इसका मतलब आपको हिसाब देना पड़ेगा। Because He has saved you, so you will have to give an account. कहीं प्रभु आपसे ये ना कहे, हे आलसी और दुष्ट दास। The Lord may not say to you, thou wicked and slothful servant. तूने वो समय, वो मौका तूने मट्टी में मिला दिया। You turned that opportunity into dust. आपके शब्द नहीं, आपका जीवन गवाही देता है। Not your words, your life gives testimony. हाँ प्रभु, हम जैसे भले ही मूर्ख है, सच बात है, प्रभु ने मूर्खों को ही चुना है। We may be fools and the Lord has chosen fools like us. ऐसे ही मूर्खों को बड़ा स्वर्गीय समझ का दर्शन दिया है प्रभु ने। And the Lord has given fools heavenly vision. अब प्रभु में दुनिया का सबसे समझदार आदमी क्या लिखता है? And what does the Lord in Proverbs, the most wise person in the world, write in Proverbs? और भैया जो सृष्टि का सबसे समझदार आदमी है, वो इसे समझने की शक्ति दे आपको। And the wisest man in the whole universe may give you the wisdom to understand this verse. कल के दिन से विषय में मत भूल। Boast not thyself of tomorrow. क्योंकि तू नहीं जानता कि आज के बारे में दिन भर में क्या होगा। For thou knowest not what a day may bring forth. वो कल के बारे में नहीं, आज भी क्या रखा होगा तेरे दिल में। Forget about tomorrow. You don't even know what is there for you today. हाँ, मौके और टाइम का हिसाब लेगा प्रभु। Lord will take an account of opportunity and time given to you. हाँ, तुम्हें काम करना आवश्यक है। You must work. आप क्या करते हो उसका हिसाब देना होगा। What you do, you have to give an account. नहीं तो फिर कीमत देनी होगी। Otherwise, you have to pay a price. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.